Commanding Officer Designate, Commander Vineet Sharma. Commissioning order by the Chief of the Naval Staff. Whereas the Government of India has decided that Indian naval ship Vakshir be commissioned, you are hereby directed to proceed to commission the said ship on the 15th day of January 2025. Indian naval ship Vakshir will be administered by the Flag Officer Commanding-in-Chief, Western Naval Command, given under my hand this, the 15th day of January 2025. Signed, Dinesh K. Tripathi, Admiral, Chief of the Naval Staff. To read out the commissioning warrant of Nilgiri, I now invite the Commanding Officer Designate, Captain Nitin Kapoor. Commissioning order by the Chief of the Naval Staff. Whereas the Government of India has decided that Indian naval ship Nilgiri be commissioned, you are hereby directed to proceed to commission the said ship on the 15th day of January 2025. Indian naval ship Nilgiri will be administered by the Flag Officer Commanding-in-Chief, Western Naval Command. Given under my hand this, the 15th day of January 2025. Signed, Dinesh Kumar Tripathi, Admiral, Chief of the Naval Staff. And finally, to read out the commissioning warrant of Surat, I now invite the Commanding Officer Designate, Captain Sandeep Shori. Commissioning order by the Chief of the Naval Staff. Whereas the Government of India has decided that Indian naval ship Surat be commissioned, you are hereby directed to proceed to commission the said ship on the 15th day of January 2025. Indian naval ship Surat will be administered by the Flag Officer Commanding-in-Chief, Western Naval Command. Given under my hand this, the 15th day of January 2025. Signed, Dinesh Kumar Tripathi, Admiral, Chief of the Naval Staff. देवियों और सज्जनों, कुछ ही पलों में कलर्स सेरेमनी निशान प्रक्रिया शुरू होने वाली है। निशान प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रगान बजाया जाएगा। कलर्स सेरेमनी निशान प्रक्रिया की घोषणा पर सभी जन वॉरशिप्स की दिशा में नौसेना के ध्वज की ओर मुड़कर अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान की समाप्ति तक खड़े रहें। राष्ट्रगान के दौरान जो लोग वर्दी में हैं वे सलामी देंगे। Please rise.
Ladies and gentlemen, we proudly present to you Indian Naval Ship Surat, Indian Naval Ship Nilgiri and Indian Naval Submarine Vagashir. देवियों और सज्जनों, हम गर्व से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर। बैठ जाइए। देवियों और सज्जनों, इस निशान प्रक्रिया के साथ ये 3 विशाल जहाज सूरत, नीलगिरी और वागशीर भारतीय नौसेना के युद्धपोत वॉरशिप्स में परिवर्तित हो गए हैं। With this colors ceremony, the deadly destroyer INS Surat, the fearsome frigate INS Nilgiri, and the silent predator attack submarine INS Vagshir have been commissioned into the Indian Navy and are ready to serve the nation. दोस्तों, बड़ा अच्छा लग रहा है। सबके चेहरे पे गर्व की मुस्कान है और दिलों में देशभक्ति की भावना है। और जो हमारे दुश्मन देश है ना, उनके पसीने छूट रहे हैं। मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पर रखिए, लेकिन तालियां फुल वॉल्यूम पे बजाइए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वागशीर का। दोस्तों, अब दिल की धड़कन तेज हो चुकी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी देश के या विश्व के किसी भी कोने में जाते हैं तो लोगों के दिलों की धड़कन तेज हो जाती है। भारत के नौसैनिक आसमान की ऊंचाइयों से लेकर महासागर के खामोश गहराइयों तक तैनात हैं, तैयार हैं। एक विशेष संदेश भारतीय नौसेना के वीर नौसेनों की दिलों की आवाज, एक विशेष संदेश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, आप अगर संग हैं। जीत जाएंगे हम, आप अगर संग हैं। दोस्तों, समय आ गया है उस आवाज को सुनने का, जिस आवाज ने हम सब भारतवासियों के दिल में आत्मविश्वास, प्रेरणा और संकल्प की भावना जागृत कर भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर अमृत काल का उदय कर दिया है। मैं अब विनम्र निवेदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, श्रीमान कृपया सभा को संबोधित करें। देवियों और सज्जनों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी, महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, मंत्रिपरिषद के मेरे वरिष्ठ साथी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, संजय सेठ जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनके साथ आज हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार जी, सीडीएस, सीएनएस, नेवी के सभी साथी, मझगांव डॉकयार्ड में काम करने वाले सभी साथी, अन्य अतिथिगण, देवी और सज्जनों, 15 जनवरी के दिन को आर्मी डे के रूप में भी मनाया जाता है। देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले प्रत्येक जाबाज को मैं नमन करता हूं। मां भारती की रक्षा में जुटे हर वीर वीरांगना को मैं आज के दिन
बधाई देता हूं। साथियों, आज भारत की समुद्री विरासत नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में नौसेना को नया सामर्थ्य दिया था, नया विजन दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स मेड इन इंडिया है। मैं भारतीय नौसेना को, इनके निर्माण कार्य से जुड़े सभी साथियों को, इंजीनियर्स को, श्रमिकों को और पूरे देश को बधाई देता हूं। साथियों, आज का ये कार्यक्रम हमारी गौरवशाली धरोहर को भविष्य की आकांक्षाओं से जोड़ता है। लंबी समुद्री यात्राएं, कॉमर्स, नेवल डिफेंस, शिप इंडस्ट्री, इसमें हमारा एक समृद्ध इतिहास रहा है। अपने इतिहास से प्रेरणा लेते हुए आज का भारत दुनिया की एक मेजर मैरीटाइम पावर बन रहा है। आज जो प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए हैं उनमें भी इसकी झलक है। अब जैसे हमारा नीलगिरी चौल वंश के समुद्री सामर्थ्य के प्रति समर्पित है। सूरत वॉरशिप उस कालखंड की याद दिलाता है जब गुजरात के पोर्ट्स के जरिए भारत वेस्ट एशिया से जुड़ा था। इन दिनों ये दोनों शिप्स, इसके साथ आज बागशीर सबमरीन की कमीशनिंग भी हो रही है। कुछ वर्ष पूर्व मुझे P-75 क्लास की पहली सबमरीन कलवरी की कमीशनिंग में शामिल होने का अवसर मिला था। आज मुझे इस क्लास की 6वीं सबमरीन बागशीर को कमीशन करने का सौभाग्य मिला है। ये नए फ्रंटियर प्लेटफॉर्म भारत की सुरक्षा और प्रगति दोनों को नया सामर्थ्य देंगे। साथियों, आज भारत पूरे विश्व और खासकर ग्लोबल साउथ में एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचाना जा रहा है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। भारत ने हमेशा ओपन, सिक्योर, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन का समर्थन किया है। इसलिए जब समुद्र से सटे देशों के विकास की बात आई तो भारत ने मंत्र दिया,
सागर, सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हम सागर के विजन के साथ आगे बढ़े। जब भारत के सामने G20 की प्रेसिडेंसी संभालने का दायित्व आया तो दुनिया को हमने मंत्र दिया, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जब दुनिया कोरोना से लड़ते हुए पस्त पड़ रही थी, तब भारत ने विजन दिया, वन अर्थ, वन हेल्थ। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानकर चलते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, उस सिद्धांत पर विश्वास करने वाले लोग हैं और इसलिए इस पूरे क्षेत्र की रक्षा सुरक्षा भी भारत अपना दायित्व समझता है। साथियों, ग्लोबल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स को दिशा देने में भारत जैसे मैरीटाइम नेशन की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। आर्थिक प्रगति और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी है कि ट्रेडिशनल वाटर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, टेरिटोरियल वाटर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर किया जाए और ट्रेड की सप्लाई लाइन और सी रूट्स सुरक्षित हो। हमें आतंकवाद, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में इस पूरे क्षेत्र को बचाकर रखना है। इसलिए आज जरूरी है कि समुद्र को सेफ और प्रॉस्परस बनाने में हम ग्लोबल पार्टनर बने। हम लॉजिस्टिक की एफिशिएंसी बढ़ाने और शिपिंग इंडस्ट्री के लिए काम करें। हम रेयर मिनरल्स, फिश स्टॉक जैसे ओशन रिसोर्सेज का दुरुपयोग रोकने में और इसे मैनेज करने की कैपेसिटी डेवलप करें। हम न्यू शिपिंग रूट्स और सी लेन्स पर अब कम्युनिकेशन को खोजने में इन्वेस्ट करें। मुझे खुशी है कि आज भारत इस दिशा में लगातार कदम उठा रहा है। भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी बनकर उभरा है। बीते कुछ महीनों में ही हमारी नौसेना ने सैकड़ों जानें बचाई हैं। हजारों करोड़ रुपए के नेशनल और इंटरनेशनल कार्गो की सुरक्षा की है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ा है, आप सबके कारण बढ़ा है और इसलिए मैं आज आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड, उन पर यह लगातार भरोसा बढ़ता जा रहा है। आज आप ही देख रहे हैं, आसियान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, गल्फ हो, अफ्रीका के देश हो, सबके साथ आज भारत का आर्थिक सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। संबंधों की इस